فن کی نزاکت بھی ہو فکر کی رفعت کے ساتھ، تب کہیں جا کر مکمل ہو سخن کا احتساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر مرزا ہادی رسوا کے شعرا آفاق ناول امراؤ جان ادا کے فنی فکری جائزے پر ہے۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس موجود ہے منظر نگاری۔ مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا میں منظر نگاری میں بھی انتہائی مہارت اور فنی چابکدستی کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے اس ناول میں مختلف مقامات، جگہوں اور موسموں کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ منظر نگاری کی ہے۔ منظر کشی کرتے ہوئے جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ مثلاً ملاحظہ کیجیے، برسات کے دن ہیں، آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، پانی دھارے کی طرح برس رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں۔ میں بوا حسینی کی کوٹری میں پڑی ہوں۔ بوا حسینی خانم کے ساتھ حیدری کے گھر گئی ہوئی ہے۔ چراغ گل ہو گیا ہے اور اندھیرا وہ کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوچتا، اور کمروں میں جشن ہو رہے ہیں۔ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، کہیں کہکہے اڑ رہے ہیں۔ ایک اور منظر ملاحظہ فرمائیں۔ شہر سے نکل کر جنگل کا ساسماں قابل دید تھا۔ جدھر بھی نگاہ جاتی ہے سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ بادل چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، نالے ندیاں بھری ہوئی ہیں، کوئل کو کو کر رہی ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس موجود ہے مکالمہ نگاری۔ امراؤ جان ادا ناول کا انداز بیانیہ ہے، مگر مرزا رسوا نے مکالمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ اپنے پیش کردہ کردار کے طبقاتی اور ذہنی حالت و حیثیت کے مطابق مکالمے اس کے منہ سے نکلواتے ہیں۔ طوائفوں کے مکالمے بازار حسن میں بولے جانے والے فکروں کے مطابق ہیں۔ نوابوں کے مکالمے نوابانہ انداز کے ہیں۔ بدماشوں اور تماش بینوں کے مکالمے اپنی نوعیت کے ہیں۔ ان کے مکالمے بر محل اور بر موقع ہیں، اور موقع کی مناسبت سے ان میں شگفتگی، مزاح، سنجیدگی، مٹھاس اور تلخی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر میمونہ انصاری مرزا رسوا کے مکالموں کے بارے میں کہتی ہیں، امراؤ جان ادا کے کرداروں کو اس کے نادر مکالموں نے اور بھی کامیاب بنا دیا ہے۔ سرشار مکالموں کے ذریعے ہی اپنے کرداروں کے اندر زندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں بیانیہ قوت نہیں، رسوا کے یہاں بیان کی طاقت کے ساتھ ساتھ مکالمہ نگاری کی صلاحیت بھی نمایاں ہے۔ ان دونوں خوبیوں نے ان کے کرداروں کو اردو ناول نگاری کی تاریخ میں نایاب بنا دیا ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس موجود ہے واقعہ نگاری۔ مرزا رسوا واقعہ نگاری میں خاصی مہارت رکھتے ہیں اور واقعات کے بیان کی ترتیب، تشکیل، تعمیر اور دلچسپی کے تمام عناصر کے بارے میں خاصے محتاط ہیں۔ اس اعتبار سے ان کے واقعہ نگاری کو انفرادیت حاصل ہے۔ بقول صغیر احمد صدیقی، یہ ناول کسی خاص مطلب و مقصد کو مد نظر رکھ کر نہیں لکھا گیا۔ پھر فنکار کا کام تو تخلیق حسن ہے، جس کے لیے کسی اخلاق یا فلسفیانہ غرض و غایت کا ہونا لازمی ہے۔ اس تخلیق حسن کے لیے ضروری ہے کہ ناول نگار جو کچھ لکھے وہ فطرت کے مطابق اور افسانہ زندگی کا جز معلوم ہو۔ یہ واقعہ نگاری مرزا صاحب کی امتیازی صفت ہے۔ وہ حسن و قبا میں تفریح نہیں کرتے۔ اشیاء حسین ہوں یا کبھی، ان کا صحیح عکس اتار لینا بجائے خود حسن ہے۔ یہ سارے کرشمے مرزا کی واقعہ نگاری کے ہیں، جس کا جادو کبھی سے کبھی جزیروں میں ایک خاص حسن کا جذبہ دکھائی دیتا ہے، جسے اس نے صداقت کہنا بے جانا ہوگا۔ میرن کی ابتدائی زندگی اپنے باپ کے گھر میں احوال دیکھیے۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے، اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کو نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کے دوڑا، دامن میں چمٹ گیا۔ ابا کی بانچیں بارے خوشی کے کھلی رہ جاتی تھی۔ مجھ کو چمکارا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا، بھیا کو گود میں اٹھا لیا، پیار کرنے لگے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ابا کبھی خالی ہاتھ گھر نہ آتے تھے، کبھی 2 کنارے ہاتھ میں، کبھی بتاسوں یا تل کے لڈوؤں کا دونا ہاتھ میں۔ اب اس کے حصے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھائی بہنوں میں کسی مزے کی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کتار چھیننے لے جاتے ہیں، 2 ہتھیار ہوئے لیتے، اماں سامنے کپریل میں کھانا پکا رہی ہیں۔ یہ مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا میں واقعہ نگاری کا ایک منظر کشی ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس موجود ہے کردار نگاری۔ مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا کے کردار اپنے معاشرے سے منتخب کیے ہیں۔ ان کے زیادہ تر کردار لکھنوی معاشرت سے متعلق ہیں۔ ناول کے کرداروں میں طوائفوں کے علاوہ کوئی نواب ہے، کوئی امیر زادہ، کوئی مولوی اور کوئی بدماش ہے۔ اکثر کردار
ऐशो इशरत की तस्वीर हैं, रंडियों के कोठे पर जाने के शौकीन हैं। बाज़ नाक़िदीन का ख्याल है कि नावल में मौजूद तमाम किरदार मुतहर्रिक हैं और अपनी अपनी जगह मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी करते हैं। बाज़ नाक़िदीन के ख्याल में रुसवा के बाज़ किरदार उम्दा तराशे हुए बुत हैं जिनमें फ़नी तासुर मौजूद है, मगर ज़िंदगी का तहरीर कम ही दिखाई देता है। डॉक्टर अहसन फ़ारूकी अमराव जान अदा के किरदारों और मिर्ज़ा रुसवा के किरदार निगारी के मुतालिक लिखते हैं, लखनवी ज़िंदगी के हर पहलू और तबके के लोग अमराव जान अदा में मौजूद हैं और इनमें हर एक टाइप का किरदार सूरत में नज़र आता है और अपनी इनफरादियत भी दिखाता है। ये समझना कि अमराव जान अदा लखनऊ की पूरी सोसाइटी को सामने लाती है गलत होगा। रुसवा ने इस सोसाइटी का एक मखसूस पहलू लिया है और इससे वाबस्ता हर किस्म के और हर तबके के इंसानों को पेश किया है। ये ज़रूर है कि ये पहलू इस ज़माने में मरकज़ी हैसियत रखता था, मगर इसके अलावा यहाँ की ज़िंदगी के पहलू भी मौजूद थे जिन पर इस नावल में कोई रोशनी नहीं पड़ी। ये इनकी फ़रकाना क़ुव्वत का इंतखाब की दलील है कि उन्होंने बरखिलाफ सरशार के एक ख़ास दायरे को लखनऊ की ज़िंदगी का इशारा मानकर इसकी पूरी तफसील पेश कर दी है। ये ज़िंदगी शानदार और ख़ूबसूरत है मगर बेकार और मिट जाने वाली है। इस नावल के किरदार इसके वाक़यात से वाबस्ता हैं, इनकी तरतीब भी इसी तनव्वुर, इत्तेहाद, आहंग का असर रखती है जैसा कि वाक़यात में है। रुसवा इस सिलसिले में भी आला फ़नकार ठहरते हैं। किरदार निगारी के हवाले से भी अमराव जान अदा उर्दू का पहला कामयाब तरीन नावल है। नावल के मरकज़ी किरदारों में खानम, हुसैनी बुआ, बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, नवाब सुल्तान, रामदाई और सबसे बढ़कर खुद अमराव जान अदा है। नंबर 1, अमराव जान अदा। इस नावल का मरकज़ी किरदार अमराव जान अदा है। ये पैदाइशी तौइफ़ नहीं बल्कि हालात की सितम ज़रीफ़ी ने इसे तौइफ़ बनने पर मजबूर किया है। अमराव जान अदा फैज़ाबाद की एक जमादार की लड़की है। इसका नाम अमीरन था। इसका एक बाप का एक दुश्मन दिलावर खां था जो इसे पकड़ कर बेचता है और लखनऊ में खानम जान तौइफ़ के हाथों 100 रुपये में फ़रोख्त कर देता है। वक्त के साथ साथ अमीरन के कोठे इसके माहौल से मानूस होकर एक मुकम्मल तौइफ़ बनकर अमराव जान के नाम से मशहूर होती है। नंबर 2 पर हमारे पास मौजूद है खानम जान। खानम जान लखनऊ की जहाँ दीदा दौलतमंद और सरकर्दा आशिक मिजाज तौइफ़ थी। अमराव जान को जब दिलावर खान ने 100 रुपये में फ़रोख्त किया तो अमराव जान की दी हुई तफसील के मुताबिक खानम की उम्र 50 बरस के करीब थी। खानम अपने माहौल और अहदे से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, लेकिन ज़रा बराबर भी ज़रा तरस करने वाली नहीं थी, बल्कि दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने वाली थी। इनकी कुर्बत बहुत मजबूत है। दूसरों की तकलीफ गुर्बत का सुनकर खुशी बच्चियों को सस्ते दामों खरीद कर उन्हें फ़नी तालीम के आरास्ता करके लाखों कमाती है। अपने पेशे पर मुकम्मल यकीन रखने वाली है। नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है बुआ हुसैनी और बिस्मिल्लाह जान। बुआ हुसैनी तजर्बाकार तोइफाना होने के साथ साथ खानम जान की दलाला है। खानम को इसके पर बरले दर्जे का यकीन है। तालीम का सब इंतज़ाम, लड़कियों की ख़रीदारी, इनकी निगहदाश्त, तालीम और तरबियत का इंतज़ाम, गाहकों के मेहमान खानों का बंदोबस्त, घर की आराइश और दिबाइश, खाने पीने का निज़ाम, गर्ज हर चीज़ इनके सुपुर्द है और तमाम कामों में ताक हैं। नवाब सुल्तान मिर्ज़ा। मर्दाना किरदारों में सबसे ज़्यादा दिलकश किरदार नवाब सुल्तान मिर्ज़ा और फैज़ अली या फैज़ू के हैं। दोनों अलग अलग तबकों की नुमाइंदगी करते हैं। नवाब सुल्तान लखनवी माशरे में आखिरी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक़ दौलतमंद खाते पीते घराने से था, जबकि फैज़ अली बदमाश का सरदार था। ताकत और क़ुव्वत का नशा हर जगह दिखाई देता है, लेकिन यह नशा हमेशा तकरीबी कामों में ही सर्फ करता था। नंबर 5 बिस्मिल्लाह जान। खानम की बेटी और पैदाइशी तौइफ़ थी। अमराव जान और खुर्शीद जान के साथ इसकी तालीम और तरबियत हुई। कारोबारी मामलात में अपनी हम माँ के हम कदम, शक्ल सूरत की अच्छी थी। खिलता चेहरा, सांवला रंग, बड़ी आँखें। खानम की बेटी होने के सबब इसकी कदर व मंजिलत की तबीयतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तजर्बाकार तौइफ़ की बेटी थी, इसलिए पेशे के फ़न में ताक थी। किसी को अपने बुनाव सिगार से, किसी को हुस्न जमाल से, किसी को बैठे बैठे बातों और किसी को रोबो अदब से अपना बनाए रखती थी। ऐश उड़ाने का कोई भी मौका हाथ से जाने न देती थी। नंबर 6 पर हमारे पास मौजूद है
फैज़ अली या फैज़ू। फैज़ अली डाकू है जो नवाबों, रईसों और उमरा की दौलत को लूट कर ऐश में उड़ाता है। जैसे वो खुद माहौल से बागी है, इसी तरह दूसरों में भी वह बगावत का जज्बा जगाने की कोशिश करता है। अमराव जान पहले दिन से खानम कोठे में कैद थी। इसकी ज़िंदगी खानम के हुक्म पर गुजर रही थी। फैज़ पर दिल आया तो ताइफ ने कोठा छोड़कर आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेने का फ़ैसला किया। बुआ हुसैनी के मना करने पर अमराव कहती है, मैंने दिल में ठान लिया है कि इस शख्स का ज़रूर साथ दूंगी, कोई जाने दे या ना जाने दे, मैं ज़रूर चलूँगी। नंबर 7, गौहर मिर्ज़ा। गौहर मिर्ज़ा दरअसल लखनऊ की हवस परस्त मुआशरे और तवाइफ़ों के पैदा करदा माहौल के सच्चे नुमाइंदे थे। इस तरह के लोग शराब, चर्स और बेशुमार बुराइयों के साथ साथ बेफिक्र, बेअमल और हाल मुस्तकबिल से बेनियाज थे। गौहर मिर्ज़ा इस तरह के लोगों के भरपूर नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। ये नवाब सुल्तान का रिश्तेदार नीबू डूमी के बेटे थे। नवाब साहब 10 रुपये माहवार गौहर मिर्ज़ा की परवरिश कर लेते थे। गौहर मिर्ज़ा बचपन में बेहद शरीर थे। खानम के घर तालीम और तरबियत के साथ अमराव जान, बिस्मिल्लाह जान और खुर्शीद की नाक में दम किए रखा। किसी को मुंह चढ़ा दिया, किसी की चुटकी ली, किसी की चोटी पकड़ खींच ली। बहरहाल बचपन ने इसी तरह गुजारा। गौहर मिर्ज़ा खानम के कोठे पर रहकर गाने में महारत हासिल करता रहा। वो अमराव जान की पहली मोहब्बत होने के साथ इसके लिए गावकों का भी इंतज़ाम करता था। इसके बदले में अमराव जान इसकी ज़रूरत को भी खूब ख्याल रखती थी। अमराव जान अदा का हर किरदार अपने ख़ास मुआशरे और माहौल की तश्कील करता है। इनमें कोई किरदार ऐसा नहीं जो नावल की तकमीली वहदत का हिस्सा न हो। इस हवाले से डॉक्टर मैमूना अंसारी लिखती हैं, जहाँ तक अमराव जान अदा के किरदारों का ताल्लुक़ है, रसूआ ने हर किरदार को बड़े सलीके और होशमंदी से तख्लीक किया है और अपनी हुनरमंदी सरफ कर दी है। इसलिए इस नावल के किरदार अमूमन साफ, सडूल और फितरती हैं। रसूआ की फितरी संजीदगी और तफासुत ने किरदारों में ज़िंदगी पैदा करने में बड़ी रुकावट पैदा की है, फिर भी कुछ किरदार जिंदा और दायमी हैं।